اور خبریں تفصیل سے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کل راجوری ضلع کے ڈانگری گاؤں کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ 1 جنوری کو 2 دہشت گردانہ حملوں میں مارے گئے افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کریں گے اور ان کی ڈھارس بندھائیں گے۔ وہیں متاثرہ خاندانوں کو بھی وزیر داخلہ امت شاہ سے کافی امیدیں ہیں۔ اس ملاقات کے بعد وزیر داخلہ راج بھون جموں میں جموں کشمیر انتظامیہ اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ حکام سے بھی اہم میٹنگ کریں گے۔ امت شاہ جموں کے راج بھون میں کچھ وفود سے بھی مل سکتے ہیں۔ یونین ہوم منسٹر امت شاہ کل ایک دن کے امپورٹنٹ دورے پہ جموں پہنچ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جب جموں پہنچیں گے تو سیدھا راجوری کے ڈانگری علاقے میں ڈانگری گاؤں میں جائیں گے اور ان فیملی سے ملیں گے جن کے جو 7 معصوم لوگ جو ہیں وہ آتنکواد کا شکار ہوئے تھے 1 جنوری کو۔ وہ ان سے ملیں گے تقریباً 11:15 کے بجے وہ وہاں پہ پہنچیں گے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہ ان کے ساتھ رہیں گے، ان فیملیز کو سانتنا باندھیں گے اور ان کو یقین دلائیں گے کہ جو سرکار ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ تقریباً وہاں سے وہ جب نکلیں گے تو پھر راج بھون جو جموں کا ہے وہاں پہ وہ ایک اچ ستریہ میٹنگ کریں گے جو تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے چلے گی، اور اس میٹنگ میں وہ سیکیورٹی کے جو سچویشن ہے اس کو ریویو کریں گے جو جموں کشمیر میں ہے، خاص کر جو راجوری میں اٹیک ہوا ہے اس کے بعد کی جو سیکیورٹی سینیریو پر وہ ڈسکس کریں گے، ریویو لیں گے، فیڈ بیک لیں گے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ایشوز پر جیسے ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے اور جتنے اور مدعے ہیں، جو پی ایم پیکیج امپلائیز ہیں، ریزرو کیٹیگری امپلائیز ہیں، اور جو ڈیلی ویجرز بار بار یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، سڑکوں پر ہیں، ان کی بات بھی ہوگی، اور ایک اوور آل ریویو میٹنگ ہر ایک ایشو پر وہ لے لیں گے۔ اور سب کی نظریں اب اسی پر ہے کہ جب ڈانگری میں وہ آئیں گے تو کیا بھروسہ دیں گے لوگوں کو، کیونکہ ڈانگری میں جب سے یہ نرسنگار ہوا اس کے بعد وہاں کے لوگ بدستور جو راجوری پونچھ بیلٹ کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ڈی سیز کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا چاہیے، جو وی ڈی سی پہلے ڈیفنکٹ پڑی ہیں ان کو دوبارہ سے متحرک کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی سینیریو ہے اس کو بھی بیف اپ کیا جانا چاہیے پورے جموں کشمیر میں، جس طرح سے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس پر وہ کیا بولتے ہیں اس پہ سب کی نظریں رہیں گی۔ اور جب وہ یہاں راج بھون میں میٹنگ لیں گے تو وہاں پہ کون سی چیزوں کا منتھن ہوگا، کن چیزوں کا منتھن ہوگا، کیا کیا ایشوز وہاں پہ اٹھائے جائیں گے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے، سب کی نظریں اسی دورے پر ٹکی ہیں، اور یہ جس طرح میں نے کہا سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ دورہ رہنا ہے، کیونکہ سب کی نظریں امت شاہ کے اس 1 دن کے دورے پہ ہیں۔ اور جب راج بھون میں وہ میٹنگ لیں گے اور اس کے بعد وہ واپس دہلی جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 27 جنوری کے بعد یہاں راجناتھ سنگھ ڈیفینس منسٹر اور آرمی چیف وہ دوبارہ یہاں راجوری کا دورہ کریں گے، اور خاص فوکس یہی رہے گا کہ وی ڈی سی کو کس طرح سے مضبوط کرنا ہے۔ سیکیورٹی سینیریو جو خاص کر بارڈر بیلٹس میں ہے، پونچھ راجوری کے بارڈر بیلٹس میں یا باقی بارڈر بیلٹس میں جو چنوتیاں بڑھ گئی ہے اب ٹارگٹ کلنگ کے بعد، اور جو ڈرون کا بھی ایک بہت بڑا خطرہ انٹرنیشنل بارڈر پہ یا لائن آف کنٹرول پہ بنا ہوا پاکستان کی طرف سے، اس کو کس طرح سے نپٹا جائے اس چیزوں کو، تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ دورہ امت شاہ کا بھی ہوگا، اور اس کے بعد جو راجناتھ سنگھ دورہ کریں گے وہ بھی ایک امپورٹنٹ دورہ رہے گا۔ کیمرامین آشو کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 راجوری۔ وزیر داخلہ امت شاہ کل راجوری کا دورہ کریں گے، جس کے پیش نظر سیکیورٹی انتظامات پختہ کر دیے گئے ہیں۔ جگہ جگہ تلاشی لی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کی جانب سے مینڈھڑ میں آج کومبنگ آپریشن کیا گیا۔ سرحدی علاقوں میں ہر آنے اور جانے والے شخص پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کو پوری چوکسی کے ساتھ مختلف راستوں پر بلاکس لگا کر سیکیورٹی میں تعینات کیا گیا ہے۔ میں سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی آر پی ایف کے جوان، جموں اینڈ کشمیر پولیس کے جوان جو ہر آنے جانے والی گاڑی کی چیکنگ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح جو ہے ایس او جی کے جوان جو ہے ہر گاڑی کی چیکنگ کر رہے ہیں، اور تمام بارڈر سے آنے والی تمام روڈز جتنی بھی روڈز ہیں وہاں پہ پولیس اور سی آر پی ایف کے جوانوں نے ناکے لگائے ہیں، اور چوکس ہیں، ہر آنے جانے والے لوگوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ آپ جو بھی جس پہ بھی شک ہوتا ہے اس کے آئیڈینٹی کارڈز وغیرہ بھی چیک کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویروں میں یہ کیسے جو ہے ایک موٹر سائیکل سوار کو کس طرح سے پورے جو ہے سی آر پی ایف کے جوان ہوں چاہے ایس او جی کے جوان ہو، ہر بیگ ان کے چیک کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کے بھی آفیسرز بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح پوری طرح سے چوکس ہے جو سی آر پی ایف کے جوان اور پولیس کے جوان بھی ہیں۔ امت شاہ کی ریلی اور 26 جنوری کو لے کر پوری طرح ہر آنے جانے والے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ناظم علی، نیوز 18 مینڈھر۔
मेंढर कस्बे में जुमेरात को मेन बस स्टैंड के पीछे जावा इलाके में सड़क के बीच में मुश्तबा गड्ढे को देखने के बाद हलचल मच गई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन किया। रोड पर गड्ढे की इत्तला मिलते ही मेंढर पुलिस और फौज मौके पर पहुंच गई, जहां उन्होंने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया। यह सिलसिला 2 घंटे तक जारी रहा। लोग खौफजदा भी हुए। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरे इलाके की तलाशी लेने के बाद कुछ नहीं मिला। ताहम पुलिस ने इस पूरे मामले पर कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया। नीलग्रात के करीब सरवल इलाके में बर्फानी तोदा गिरा, जिसमें 2 अफराद की हलाकत हो गई है। मेगा टनल में मजदूर के तौर पर काम करने वाले दोनों अफराद उसके नीचे दब गए। दोनों अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। पुलिस पार्टी सोनमर्ग मौके पर पहुंच गई है और तलाशी और बचाव ऑपरेशन करके लाशों को बर्फ के नीचे से निकाला। बर्फानी तोदे की जगह से दोनों कारकुनों की लाश निकालकर करीब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके को साफ करने के लिए पुलिस, SDRF, आर्मी, बेकन और MEIL की टीमें मौजूद हैं। एम्बुलेंस और दीगर मेडिकल टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। 2 बजे तक ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी कि सब कुछ ठीक है, मगर 2 बजे के बाद इन्फॉर्मेशन फ्लैश हुई है कि एक डेड बॉडी जिसका नाम है संदीप फ्राम कश्तवाड़, संदीप कुमार, उसकी डेड बॉडी मिली है। तो और एक मिसिंग है जो बाल कृष्ण है फ्राम कश्तवाड़। तो ऑपरेशन ऑन है, लगे हुए हैं सब आर्मी, पुलिस, SDRF और SDMO तहसीलदार भी वहाँ खुद भी है, वहाँ मौजूद है। मेडिकल टीम्स है, एम्बुलेंसेस है, सब कुछ ऑपरेशन चल रहा है। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये वेंचर कर रहे थे सड़क पर, उस वजह से उनका लॉस हुआ है। बाकी जो उनका नाइट स्टे का है, जो वर्कर्स हैं वहाँ है, तो वो 1 किलोमीटर दूर है इस हमला से, वो सारे के सारे सेफ है। तो यही पता नहीं कि ये 2 कैसे वहाँ गए हैं। तो एक की डेड बॉडी रिकवर हुई है, दूसरी की तलाशी हो रही है। इंजीनियर के साथ हमारी बात हुई आज, 2-3 बार हो गई उनके साथ बात। उन्होंने कहा कि हमने सुबह से ही 7 बजे से वार्निंग इशू की थी, अलर्टनेस इशू किया था रिगार्डिंग द एवलांचेस, तो लेकिन इन लेबरर्स ने सीरियस नहीं लिया है। तो इस पर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कि फैक्ट्स क्या है। फौज की 41 RR ने आज सरहदी इलाके सरकोली कलारूस में दर्द जख्म में मुब्तला खातून को अस्पताल पहुंचाया। दौरान शब फौज को सरकोली गांव से एक फ़ोन कॉल आया और मदद की गुहार लगाई गई। शदीद बर्फबारी के दौरान फौज के जवानों ने गाड़ी में खातून को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इसका बरवक्त इलाज हुआ और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अहल खाना और डॉक्टरों ने फौरी कार्रवाई और बरवक्त इमदाद पर फौज की 41 RR यूनिट और कमांडिंग अफसर नावल गट्टी का शुक्रिया अदा किया। RR के जनाब CO साहब, कंपनी कमांडर साहब और जो इनके जवान थे, जब इन तक बात पहुंची, इनको फ़ोन किया तो इन्होंने एक बहुत बड़ी हमारे साथ एक हेल्प की। वार्ड नंबर 3 जखंदका में एक बहुत अलोसी मानी जाती है ये जगह, बहुत ऊंची जगह है, जिसमें कि कोई भी गाड़ी का जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं था, कोई देना ही लेना नहीं था। लेकिन फौज ने और 41 RR के साहब ने हमारे साथ एक हेल्प करके हमारी ये कीमती जान बचाई। मरियम जान बेगम को वो इधर से ले गए, वहाँ कलारूस में एडमिट की। मेरी फैमिली का डिलीवरी केस था। मैंने अस्पताल में फ़ोन किया कलारूस में, मैंने बोला एम्बुलेंस भेजो, मुझे फैमिली का डिलीवरी केस है। तो उन्हें बोला कोई गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, बर्फ ज़्यादा है। तो मैंने फिर क्या सेवलू को फ़ोन किया, उन्हें भी बोला हमारी सोमा ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, हम नहीं आ सकेंगे, बर्फ ज़्यादा है। मैंने किया 41 RR को किया फ़ोन, उन्हें बोला जल्दी से बोल दिया कि आधे घंटे में हमारी गाड़ी पहुंच जाएगी। तो उन्हें पहुंचा दिया गाड़ी, हम आराम से बैठाए उन्हें, फिर अस्पताल में ले गए। मैं शुक्रगुजार हूँ 41 RR का CO का, तो उन्हें पहुंचाया, आराम से ले गए, कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में। जनरल मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मसाइल पर बयान दिया। उन्होंने कई सवालात के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि शिमाली सरहद पर सूरत हाल मुस्तहकम है, लेकिन गैर मुतवक्किल भी है। 7 मुतनाज़ा मकामात में से 5 मकामात के मसाइल को सुलझा लिया गया है और दीगर मामलात पर बातचीत जारी है। LAC पर हमारी तैयारी आला मयारी और मुनासिब है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2021 में जो जंग बंदी हुई थी वो बिला रोक टोक जारी है। वादी में कुछ प्रॉक्सी तंजीमें हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम पूरी तरह से कोशिश हैं कि दहशतगर्दी को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और किसी हद तक दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी भी आई है। I've seen number of profound changes
the security and the economic fallout of the Russia-Ukraine conflict is known to us. We also see, or we have seen, complex relations in the global scenario. The impact of COVID, we still feel the impact. In the immediate neighborhood, there are security challenges, and I don't have to elaborate on them. Last but not the least, what has come to the fore is the limitless potential of disruptive technologies. So in this backdrop, very briefly, if I were to summarize the situation along our borders, and I shall take the northern borders first, I would say the situation is stable and under control, yet unpredictable. You are aware of the talks, ongoing talks, wherein we have been able to resolve 5 out of the 7 issues that were on the table. And we are continuing to talk both at the diplomatic as well as the military level. In terms of our preparedness levels, they remain of a very high standard. We have adequate forces, we have adequate reserves in each of our sectors to be able to effectively deal with any situation or contingency. You are also aware of the strategic reorientation or the rebalancing that we undertook some time back. I must mention that it is complete in every respect. As far as the situation in the Jammu and Kashmir is concerned, I think the ceasefire understanding which came about in February of 2021, that is holding well. The cross-border support to terrorism and the terrorist infrastructure, however, remains. In the hinterland itself, we have seen some of the proxy tanzeems which have been indulging in activities or acts purely with a view to gain visibility and remain in the news. But what is heartening is the reduction or marked reduction in violence parameters. पुंछ के पुलिस लाइन ग्राउंड में मिलने वाले हैंड ग्रेनेड को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से नाकारा बना दिया। वाज़ेह कि आज सुबह पुंछ पुलिस लाइन ग्राउंड में एक पुराना हैंड ग्रेनेड मिला, जिसके बाद पूरी पुलिस और बम स्क्वाड ने इलाके को घेरे में लेकर उसका मुहासरा करके तफ्तीश शुरू कर दी, जो कुछ देर बाद तेज बारिश के दरमियान फटने से गैर फाल हो गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाएं। उन्होंने कहा कि इस वक्त सिक्योरिटी का मंजरनामा ठीक नहीं है और सिर्फ मुंतखब हुकूमत ही जम्मू कश्मीर के लोगों के हकीकी मसाइल हल कर सकती है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के साथ साथ वज़ीर दाखिला को जम्मू कश्मीर में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के हकीकी मसाइल का भी जायज़ा लेना चाहिए। बात मांग करो, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन तय करेगा। इसलिए पार्टी तो रोज एक शो से छोड़ती है भारतीय जनता पार्टी। कई बार ये शेड्यूल हम सुन चुके हैं और फिर वो चुनाव होता नहीं है। हम चुनाव के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है, कल भी तैयार है। स्टेट हुड को बहाल करें, चुनाव जल्दी करें, जहाँ चुनी हुई सरकार करें, तानाशाही आर्डर निकालने बंद करें। गरीब आम तबका जो है सड़कों पे है। सिर्फ एक बीडीसी ही मजबूत नहीं करना और बहुत कुछ मजबूत करने की ज़रूरत है। जितने कश्मीरी पंडित कश्मीर वादी में गए थे पिछले 10 साल में, वो वापस आ गए। जितने जम्मू के मुलाजिम कश्मीर में गए थे वो जम्मू वापस आ गए। 22 साल के बाद राजौरी में हत्याकांड हो गया और फिर भी सरकार कहती है हालात अच्छे हो गए। तो अब उस सरकार को हम सुनाना चाहते हैं कि हालात सिक्योरिटी सिनेरियो खराब है। नौकरियां निकल रही नहीं, वो तंग हैं। प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब नहीं निकल रही, वो तंग हैं। हर सेक्शन किसान तंग हैं। अब आपने एक ऑर्डर कर दिया कि लाखों लोग बेघर कर दो, एक ऑर्डर से वो इंक्रोचर हो गए, वो तंग हैं। इसलिए इस हालात में सरकार चुनी हुई ये हल कर सकती है। सिक्योरिटी सिनेरियो को ठीक करें, टाइट करें, उसमें तमाम पहलू जोड़ करके टेररिज्म के खिलाफ हम एकजुट हैं, हम साथ हैं। लेकिन सरकार जो है दावे गलत करती है। ज़मीनी हक़ाइक़ में माइनॉरिटी जो है ज़्यादा खतरे में है इस वक्त।
जम्मू के मेयर और बीजेपी के सीनियर लीडर राजेंद्र शर्मा का कहना है कि पार्टी इस साल मार्च अप्रैल में इंतखाबात के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए राजेंद्र शर्मा ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह कल आ रहे हैं, वो इस बारे में बात करेंगे। राजेंद्र जी, जो बीजेपी की अभी हाल में मीटिंग्स हुई हैं, कल भी मीटिंग्स हुई, उसमें निकल के आया है कि इलेक्शन जो है वो मार्च अप्रैल में हो सकते हैं, क्या कुछ तैयारियां इसके लिए? देखिए, इलेक्शन जो है वो तो कभी भी हो सकता है और उसके लिए हमारी पार्टी हमेशा तैयार रहती है। तो उसी के दिशा अनुसार ये सारे काम हो रहे हैं। हमें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन मिल रहा है और हमारा जो स्टेट का नेतृत्व है वो भी अपने कार्यकर्ता को मार्गदर्शन दे रहे हैं ताकि हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहें। चुनी हुई सरकार का इस वक्त होना कितना इंपॉर्टेंट है आपको लगता है जम्मू कश्मीर में? आप देखिए, मोदी साहब ने ग्राउंड लेवल पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और बाकी सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो उन्होंने कारगर किए हैं। उनके द्वारा लोगों को सर्विसेज मिल रही हैं। आज लोग बहुत खुश हैं। जहां एक वार्ड में पहले 10-10 लाख रुपया लगता था और आज 4-4, 5-5 करोड़ रुपया एक वार्ड में लग रहा है और इसी प्रकार से पंचायत में लग रहा है। लोगों के डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और ये डेमोक्रेसी का प्रोसेस इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे, उसी में सबकी भलाई है। तो आप इलेक्शन जो कमेटी है उसके भी आप अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी जम्मू कश्मीर में। आपको क्या लगता है कि जब आप मेयर बने हैं इसका फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि अब जिस तरह से आपने एक मुहिम चलाई है और डोर टू डोर आपने कैंपेनिंग की है। देखिए, हर देश का और हर व्यवस्था का, हर समाज का एक ही लक्ष्य रहता है, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल व्यवस्थाएं, और उसी के लिए ये इलेक्शंस करवाई जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज बनाई जाती हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। और उसके लिए आप देख रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं पूरे देश में बहुत ही सुदृढ़ और ताकत के साथ काम हो रहे हैं। अमित शाह यहाँ पे आ रहे हैं, आपको लगता है कि इससे बल मिलेगा, एक बिगुल फूका जाएगा इलेक्शन का? अमित शाह जी आ रहे हैं, वो भी हमें यहाँ दिशा निर्देश देंगे आने वाले समय में हमें किन परिस्थितियों में काम करना है और किन उद्देश्यों को लेकर चलना है। तो जो वो मार्गदर्शन देंगे उस पर भाजपा चलेगी। तो इलेक्शन यहाँ पे जल्द हो सकते हैं, ये कहना है यहाँ मेयर जम्मू का। उनका कहना है कि अमित शाह जब यहाँ पे आएंगे उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उससे उनकी जो दिशा है आने वाले वक्त में वो तय होगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। नायब सदर और मीडिया हेड जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी बशारत बुखारी ने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के बयान पर रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें किसने कहा कि मुसलमान खौफजदा हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। उनको किसने कहा कि वो हमें मशवरा दें? जो लोग मशवरा देने की कोशिश करते हैं इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि वो आला हैं, लेकिन हकीकत में वो कमतर हैं। अगर उन्हें वाकई ऐसा महसूस होता है तो उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मुसलमानों के कत्ल की मजम्मत करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उनको किसने कहा कि हमें डर है या हम खौफजदा हैं? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो खौफजदा करना चाहते हैं, लेकिन हम खौफजदा नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें किसने कहा हमें नसीहत करने के लिए, भाई साहब? और सबसे बड़ी बात है कि जो नसीहत करता है या सोचता है नसीहत करने की, इसका मतलब वो खुद को बड़ा समझता है। जो खुद को बड़ा समझता है उसी को बालादस्ती कहते हैं। उनको गलत है, उन्होंने डिक्शनरी गलत पढ़ी है, उसी को बालादस्ती कहते हैं। और मेरे हिसाब से कमतर इंसान वो होता है जो दूसरों को कमतर समझ के उनको नसीहत करे, उनसे कहे कि हमें नसीहत ना करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो यहाँ बैठे, हम लोग जो है यहाँ पे, हमारा अपना निज़ाम है, अपना सिस्टम है, अपन में कि दीन के हिसाब से चलते हैं और ये आफाकी मज़हब है। इसमें हमें क्या किसी की नसीहत की ज़रूरत है? वो जो कह रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको बता दीजिए कि हमें नसीहत की ज़रूरत नहीं है और बालादस्ती मत दिखाइए। आप क्या फर्क क्या बनता है इनको? अगर उनको इतना एहसास है इस बात का, वाकई में एहसास है, मैं तो जानता नहीं उनको, तो उनको चाहिए कि जितने भी ये रोज़ आते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, उस मुसलमान को वहाँ मारा गया, इस मुसलमान को यहाँ मारा गया, कोई हमारे पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो उस पर उनको कोई अफसोस नहीं है क्या? उनको तो पब्लिकली उस चीज़ को कंडेम करना चाहिए था कि जो भी इस तरह की बात करें। बाकी हमें उनकी किसी नसीहत की ज़रूरत नहीं है। और बालादस्ती क्या होती है? आज उनसे पूछे कि हमारे कितने एमपीज़ हैं, आज कितने मुसलमान एमपीज़ हैं वहाँ पे पार्लियामेंट में,
ان سے یہ پوچھے کہ آپ کی پارٹی میں کتنے مسلمان منسٹر ہیں, یہ بتائیے ذرا. ہماری پاپولیشن کتنی اور کتنے منسٹر ہیں ہمارے. ایک تھا اچھا مسلمان جیسا جو بھی تھا, میں تو جانتا نہیں ان کو, نقوی صاحب, اب وہ بھی نہیں ہے ادھر. تو بالادستی کس کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کے ہندوستان کی کابینہ میں کوئی مسلمان وزیر نہیں ہے, اس کو بالادستی کہتے ہیں آپ؟ اگر بالادستی اس کو کہا جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ختم کر دیجئے, 4-5 بنا لیجئے منسٹر ہمارے, بالادستی ختم ہو جائے گی. یہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہیں. ان کو ووٹ بینک, بیسیکلی یہ بی جے پی کو سپورٹ کرتے ہیں ووٹ بینک پالیٹکس کے لیے. تو کریں, ہمیں بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ اور ہاں مسلمان کو تکلیف ہو سکتی ہے انڈیویجول لیول پہ, کسی کو تکلیف, کسی کو مارا گیا, کسی کی پٹائی ہوئی, وہ ذاتی, وہ تو تکلیف ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, اس شخص کو بھی, اس کنبے کو بھی, اور اوور آل میں ہمیں بھی. لیکن اسلام کو خطرہ نہیں ہو سکتا ہے. آفاقی مذہب ہے, اللہ تعالیٰ کا دین ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر آخر زمان ہے. تو کیا ممبر پارلیمنٹ و نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر حسنین مسعودی نے جنوبی ضلع شوپیاں کا دورہ کر کے یہاں ضلع اسپتال میں مریضوں کو دی جا رہی سہولیات کا جائزہ لیا. اس دوران حسنین مسعودی نے نیوز 18 کے نمائندے ارشاد ملک سے بات کرتے ہوئے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ہم ہر اس قدم کو جو امن و ترقی کے لیے اٹھائے گا اس کے ساتھ ہیں, چاہے وہ راہل گاندھی کی پیدل یاترا ہو یا مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا دورہ کشمیر. بعد میں حسنین مسعودی نے منی سیکریٹریٹ ارحمہ شوپیاں میں ضلع افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کی. بات یہ ہے کہ جو قدم بھی امن کی طرف بڑھے گا, فلاح کی طرف بڑھے گا, عوام کی بہبودی کی طرف بڑھے گا, اس ہر ایک قدم کا مجموعی طور پر اس ہر ایک قدم کے ساتھ ہمیں اس کا ویلکم کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب کا آپ کو معلوم ہے, ڈاکٹر فاروق اللہ صاحب جو ہمارے صدر محترم ہے, تو وہ پہلے ہی وہاں ملاقات ہوئے ان سے, تو اس کے بارے میں جو آپ کا رد عمل ہے وہ تو پہلے ہی انہوں نے ظاہر کیا ہوا ہے. تو کوشش ہونی چاہیے, پریاس ہونا چاہیے امن کا. امن کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے, اور جب تک امن نہ ہو تو ترقی ہو نہیں سکتی ہے. تو یہ ہینڈ ان ہینڈ, بوتھ پیس اینڈ پروگریس گو ہینڈ ان ہینڈ. ڈیولپمنٹ اور ہم امیجن نہیں کر سکتے, کلپنا نہیں کر سکتے جب تک پیس نہ ہو. اور پیس تب آ جائے گی جب عوام کی امنگوں کا آپ احترام کریں گے, جو امنگیں ہیں ان کا احترام کریں گے, اور جو حقوق ہے ان کا پاس کریں گے. ٹھیک ہے نا, وہ کریں گے تو اس سے پیس آئے گی, اور پیس ہوگی تو فری ڈیولپمنٹ. پی ڈی پی نے پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں بی پی ایل زمرے اور پسماندہ طبقے کے لیے راشن میں 75% کمی کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی. پی ڈی پی کے سینئر لیڈر اقبال ترنبو نے کہا کہ بی پی ایل زمرے کے لیے راشن میں 75% کی کمی اور جموں کشمیر کے 40 لاکھ لوگ جو این ایف ایس اے کے تحت متعدد اسکیموں کے مستفید ہیں, انہیں شدید سردیوں کے اس مشکل وقت میں بھوک اور افلاس کا شکار بناتا ہے. ان 2-3 سالوں میں اس کو سبسٹینشلی ریڈیوس کیا گیا ہے. یہ پہلے 15 کلو پر ہیڈ سے 10 کلو پر ہیڈ لایا گیا, اور اب جو ہم نے یہ نیوز پیپر میں ہیڈ لائن دیکھی, اس سے اب یہ 5 کلو پر ہیڈ ہو گیا ہے. ان 15 کلو میں کچھ کیجیز فری تھے آلریڈی, اور کچھ بہت ہی کم قیمت پر لوگوں کو مہیا تھے, 3 روپیہ پر کے جی, اور ہائیسٹ ریٹ جو تھا وہ 10 روپیہ پر کے جی جو ہے لوگوں کو ملتا تھا. 6 لاکھ لوگ صرف سری نگر سٹی کے اندر جن کو یہ انٹائٹلمنٹ تھی, اگر ہم سارے جموں کشمیر کا تخمینہ لگائیں گے تو 40 لاکھ لوگوں کو یہ راشن ملتا ہے. اب یہ جو 5 کلو کا راشن ابھی جو ہم نے یہ اخبار میں پڑھا یہ مل رہا ہے, یہ 5 کلو کا راشن جب کنزیومر کو ملتا ہے, بینیفیشری کو ملتا ہے, تو 4 ہی کلو ملتا ہے. آپ اس آرڈر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنی اس اخبار کی ہیڈنگ کے برعکس یہ کتنا خطرناک آرڈر ہے, اور کس طرح یہ ڈپرائیو 40 لاکھ لوگوں کو ریشن سے کر رہا ہے, جو اب اس ونٹر میں ان کی اشد ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر دن ہر روز ایک نیا آرڈر جو اینٹی پیپل اور جو لوگوں کو مشکلات میں ڈال رہا ہے. آپ کو بھی بتانا چاہتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ these are hard times. We don't know. We can only pray that we survive these hard times. یہ پالیسیز جو بن رہی ہیں یہ absolutely detrimental ہے. یہاں کے انڈر پریولیجڈ, یہاں کے بی پی ایل, یہاں کے ایوریج کامن مین کے لیے ہر طبقے کے لوگ ان پالیسیز سے افیکٹ ہو رہے ہیں.
राजौरी में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के बाद विलेज डिफेंस गार्ड को दोबारा फाल बनाने के लिए नई तहरीक पैदा हुई है। फौज ने डोडा जिले के वीडीजीज को अपने दिफा के लिए तरबियत देना शुरू कर दी है। इन देहातियों को विलेज डिफेंस गार्ड्स के बैनर तले तरबियत और मुसल्लह किया जा रहा है, जो कि पहले वीडीसीज कहलाते थे। सेल्फ डिफेंस कैंप्स शुरू होने के बाद से पिछले 2 हफ्तों में वीडीजीज की बड़ी तादाद में शिरकत देखी गई है। वीडीजीज को एसएलआर हथियारों से लैस किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को पहला वाइल्ड लाइफ हेल्थ सेंटर कम डायग्नोस्टिक सेंटर मिला। दाचेगाम नेशनल पार्क में कायम वाइल्ड लाइफ हेल्थ सेंटर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों पर मुताला के लिए एक अहम तहक़ीक़ी मरकज़ के तौर पर भी काम करेगा। इस सेंटर को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया गया है और तलबा के लिए एक म्यूजियम भी कायम किया गया है। जंगली जानवरों का इलाज कैसे हो? आपने इंसानों का हॉस्पिटल, आपने पालतू जानवरों का हॉस्पिटल तो देखा होगा, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जंगली जानवरों का न सिर्फ इलाज होगा बल्कि उनकी बाकी तशखीस भी होंगी, यानी डायग्नोस्टिक सेंटर भी खुल गया है। जी हां, दाचीगाम नेशनल पार्क में अपनी नवीयत का जम्मू कश्मीर में पहला ऐसा वाइल्ड एनिमल हेल्थ केयर सेंटर कम डायग्नोस्टिक लैब खुल गई है। जो हमारा ये हेल्थ सेंटर कम रिसर्च फैसिलिटी है, यहाँ पे हमने लेटेस्ट इक्विपमेंट से इसको इक्विप किया हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सर्जिकल इक्विपमेंट्स लेटेस्ट हमने लाए हुए हैं। एक अल्ट्रासाउंड है हमारे पास, कलर डॉपलर है हमारे पास, लेटेस्ट ब्लड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव इक्विप्ड आवर फैसिलिटी विद मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, जहाँ की भी हमके मॉलिक्यूलर रिसर्च में हमारा वो बहुत मदद देगा, जिसमें DNA बैंक हमारा रहेगा इनिशियल फेज़ में, और मॉलिक्यूलर डिजीज़ डायग्नोसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ जैसे वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, पैरासिटिक डिजीज़ है, उन पे हमारा फोकस रहेगा। हम इनको स्टेप वाइज इन प्रोजेक्ट मोड स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसा होना कि मतलब ये डायग्नोसिस हो और इस पर रिसर्च हो, ताकि खुदा ना खास्ता कभी हमने बहुत सारी स्पीशीज़ में देखा है कि कई वायरल डिजीज़ आ गई तो सारा ख़त्म हो जाता है। तो ये ऐसा होना चाहिए कि मतलब यहाँ पे जो प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, तो हम ये है कि हम रिवाइव कर सकते हैं कभी भी। तो ये इस चीज़ के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है हमारी जो हमारी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज या वाइल्ड लाइफ, तो ऐसा होना बहुत ज़रूरी है हमारा यहाँ। पहले कोई मरकज़ ऐसा नहीं था यहाँ पे, तो ऐसा कोई मतलब ऐसी फैसिलिटी कभी देखी नहीं है हमने। यहाँ पे डायग्नोसिस है, सर्जरीज होती हैं, और कंजर्वेशन के लिए जो DNA प्रिजर्व करते हैं। तो इन केस मैं भी इसी सिलसिले में आया हूँ, तो फॉर कंजर्वेशन ऑफ दीज स्पीशीज़ हो जाए, तो ये इम्पोर्टेंट है कि मतलब कहीं पे एक सेंटर हो जहाँ पे ये चीज़ें हो। इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर आप इसको दे देते हैं आपको। लोगों को धमकी देने का पोस्टर चस्पा करने वाला गिरफ्तार। जी हां, लोगों को धमकी देने वाला जो पोस्टर चस्पा करने वाला था वो गिरफ्तार कर लिया गया है। पलहालन पटन में मुलजिम अल्ताफ अहमद राथर तांत्रे गिरफ्तार। तांत्रे पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर्स से राब्ते में था। खौफ की फजा पैदा करने के लिए पोस्टर चस्पा किया गया था। केस की मजीद तफ्तीश जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, जो शख्स धमकी देने का पोस्टर चस्पा करता था वो गिरफ्तार कर लिया गया है। पलहालन पटन में मुलजिम अल्ताफ अहमद राथर तांत्रे को गिरफ्तार कर लिया गया। तांत्रे पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर से राब्ते में था। खौफ की फजा पैदा करने के लिए पोस्टर चस्पा किया गया था। केस की मजीद तफ्तीश जारी है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पलहालन पटन में मुलजिम अल्ताफ अहमद राथर तांत्रे को गिरफ्तार किया गया है। इस पर इल्जाम है कि धमकी देने का जो पोस्टर है वो चस्पा करता था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तांत्रे पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर से राब्ते में था और खौफ का माहौल पैदा करने के लिए पोस्टर चस्पा किया करता था। उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों को धमकी देने के लिए पोस्टर चस्पा करता था मुलजिम अल्ताफ अहमद राथर तांत्रे, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खौफ की फजा पैदा करने के लिए ये दहशत के पोस्टर चस्पा करता था, धमकी देने वाले पोस्टर चस्पा किया करता था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। और आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके नौगाम, हंदवाड़ा, लाजपतवारी में बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बिजली और पानी का निजाम मुतासर हुआ, जबकि सड़कों को काबिल आमदरफ्त बनाया गया है। लोगों की तरफ से बर्फबारी पर मिला जुला रद्दमल सामने आ रहा है।
लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर बीकन, BSF और फौज का शुक्रिया अदा किया कि बर्फबारी होने के साथ साथ सड़कों को काबिल आमदरफ्त बनाया जा रहा है और बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगाया गया। लोगों का कहना है कि BSF ने बर्फबारी के दौरान घर घर मुफ्त अद्वियात फराहम की। लोगों ने मुतालबा किया कि इलाके में पानी का निज़ाम दुरुस्त बनाया जाए। कम ही आता है, लेकिन एक बात है कि लाइनें जो हैं इस दूर दराज इलाके में भी ये बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। हम BSF का और आर्मी का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये इस वक्त भी आकर यहाँ का हाल चाल मालूम करते हैं। और कल ही यहाँ पर एक BSF की तरफ से एक मेगा कैंप जो है, इसका मेडिकल कैंप जो है वो मुनक्कद किया गया, जिसमें तकरीबन 500-600 मरीजों में दवाइयाँ जो हैं वो मुफ्त में तकसीम की गई। 91 बटालियन BSF ने जो एक मेडिकल कैंप किया, घर घर तक बीमारों को दवाइयाँ पहुँचाई, अच्छी डॉक्टरों की टीमें बुलाई यहाँ, जिसमें लेडीज डॉक्टर भी थे, जेंट्स डॉक्टर भी थे। उन्होंने अच्छी तरह तकरीबन 400 से ज़ायद पेशेंटों को यहाँ देखा और फ्री में दवाइयाँ दस्तयाब हुई। बिजली का निज़ाम बंद है, हम मानते हैं कि बर्फ़ की वजह से बिजली का निज़ाम बंद हो रखा है, इंशाल्लाह जल्दी उसको रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन ख़ास तौर में DC कुपवाड़ा से गुजारिश करूँगा कि पानी के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि PHE वाले हमारी बातों को हमेशा दरगुजर करते। वादी के दीगर बालाई इलाकों की तरह जिला पुलवामा के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। जिला पुलवामा के संगरवानी और इससे मुल्हिका इलाकाई बालाई इलाकों में 4 से 6 इंच तक बर्फबारी हुई है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जानिब से इन इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। दूसरे इलाकों की तरह बडगाम में भी रोड सेफ्टी वीक जारी है। इस दौरान मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। वहीं आज ARTO ऑफिस बडगाम में मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। इस दौरान ड्राइवरों के अलावा जो भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका मेडिकल टेस्ट किया गया। ड्राइवरों ने इसे अच्छा इक़दाम करार दिया। उनका कहना था कि अगर ड्राइवर पूरी तरह चौकस होता है तो सड़क हादसा होने के काफ़ी कम चांसेस रहते हैं। वहीं ARTO बडगाम मंजूर अहमद ने कहा कि वो बेदारी प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि गलत ड्राइविंग का सिलसिला ख़त्म हो। जो इस टाइम है ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के एक्सीडेंट्स ना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए ये जो इन्होंने सेटअप उठाया ना, इट इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा सेटअप है। क्योंकि पिछली बार जब लाइसेंस अप्लाई करते थे ना, ऐसे ही करते थे, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जो अब सेटअप उठाया ना, ये अच्छा है। जो ट्रैफिक है, जो पार्किंग का इशू है, उनके लिए कुछ इंतजाम होनी चाहिए ना। जो हमारी ड्राइविंग टेस्ट भी है, जो ऑन मेरिट बेसिस पर यहाँ ड्राइविंग क्वालिफाई करा है, जिसका आज मेडिकल चेकअप है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट टेस्ट देख रहे हैं, BP देख रहे हैं। हाँ, कल का जो हमने कल रोस्टर बनाया, कल का दिन हमने ऑन रोड पर देखेंगे चेकिंग ऑफ रोड, उसमें ट्रैफिक पुलिस भी आ जाएंगी और पुलिस भी आ जाएंगे, और हम कोऑर्डिनेशन 3 डिपार्टमेंट के साथ। उसके बाद हमने रोड पर जाना है ब्लाइंड स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, जिसमें RNB एक्शन स्टेक होल्डर एक है, उसमें मेंबर वो भी आएगा और हम भी उसके साथ है और पुलिस भी साथ है। ये हफ्ता पूरा इस अवेयर। बांडीपुरा में अगरचे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, तहम सरहदी खित्ते गुरेज में 1.5 फुट के करीब ताज़ा बर्फबारी हुई है। गुरेज के अलावा तुलेल और बख्तूर इलाके में भी आज दूसरे रोज़ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उधर मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने गुरेज में आज सुबह से अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। यहाँ बात काबिल जिक्र है कि बांडीपुरा गुरेज सड़क को चंद रोज़ पहले ही ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, जबकि ताज़ा बर्फबारी के बाद अब दाबर तुलेल सड़क भी आमदरफ्त के लिए बंद हो गई है। कुलगाम के पहाड़ी इलाकों में कल बाद दोपहर से दरमियाना और बेशतर मकामात पर भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सयाहती मकाम अहरबल और दमहाल हाजीपुरा इलाकों में कई इंच बर्फ जमा हो गई है, जबकि इंतजामिया मुतल्लिका सब डिवीज़न इंतजामिया नूराबाद ने कल शाम से ही सड़कों पर से बर्फ हटाने के साथ अशिया ज़रूरिया के हवाले से भी अहम हिदायत जारी की। ज़िले के मैकेनिकल सब डिवीज़न कुलगाम ने बर्फ हटाने की मशीनों को अलावा इलाकों में रवाना किया और ये अमल रात और सुबह सवेरे भी जारी रहा। ज़िला कुलगाम के पहाड़ी इलाकों में कल बाद दोपहर हुई बर्फबारी से इन इलाकों में आम जिंदगी काफ़ी मुतासिर हो गई, जबकि इन इलाकों में 8 इंच से भी ज़्यादा बर्फ रिकॉर्ड की गई। ज़िले के नूराबाद इलाके में दौरान शब और आज सुबह से ही सड़कों पर बर्फ हटाने का काम जारी था। इस दौरान इंतजामिया मुतहरिक हो गई है और उन्होंने पहाड़ी इलाकों के लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। सयाहती मकाम अहरबल और देन्यू कंडीमर्ग इलाकों में ज़्यादा बर्फबारी हुई है। उधर SDM नूराबाद ने तहसीलदार दमहाल हाजीपुरा और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हमरा कई इलाकों का दौरा किया। यहाँ
थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी, उसके बाद रात को बर्फबारी यहाँ हुई। इसमें जो नंदीबर्ग में सबसे ज़्यादा बर्फ़ 10 इंच वहाँ रिकॉर्ड की गई। उसके बाद अगर हम DK मर्ग या हम इधर अहरबल साइड में वहाँ 6 से 7 इंच बर्फ़ रिकॉर्ड की गई। तो हमारी जो टीम थे कल दोपहर से ही बिल्कुल फील्ड में थी। इसमें हमारे तहसीलदार साहब है, हमारे AEE साहब है, मैकेनिकल है, RNB है या बाकी जितनी भी एजेंसीज है वो फील्ड में थी। इस वक्त भी हम एक साथ हैं। अभी हम सुबह ही एक चक्कर हम 2-3 रोडों पे सुबह ही गए। जो मेन रोड है वो हमने तकरीबन सब क्लियर कर दिए है। पुंछ जिले के बुलंद व बाला इलाकों में दूसरे दिन भी सुबह से बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से तकरीबन हर इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। मुसलसल बर्फबारी से लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की कमी के बायस लोगों को पैदल चलना पड़ता है। उन्होंने मुतालबा किया कि बर्फ हटाने के इंतजाम किए जाएं। लोगों ने बिजली, पानी और राशन की बाकायदा फराहमी का भी मुतालबा किया है। दूसरी जानिब नशेबी इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पहले आपका शुक्रिया है, आप जो इस इतनी बर्फबारी में यहाँ पहुँचे हो, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो सबसे पहले यही कहना चाहते हैं कि ये साल की सबसे पहली बर्फ़ हुई है। जो इस बर्फ़ में जो है लोगों को बहुत बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इन इलाकों को देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई फैसिलिटी उतनी तो है नहीं, जो कि लाइट हो या कि पानी का बंदोबस्त हो। पानी में जो है ठीक है, अभी थोड़ी बर्फ़ की भारी होने से जो है पानी में राहत मिल सकती है थोड़ा, क्योंकि पानी का थोड़ा बहुत बड़ा मुश्किल था पहले इशू, और लाइट का भी थोड़ा इशू रहता है, जिसमें जो है इन इलाकों में ऐसे बर्फाने मौसम में लाइट और पानी की सख्त ज़रूरत है। और दूसरा जो है राशन का मामला है, तो इन जगहों पे जो है राशन अवेलेबल होना चाहिए ताकि लोगों को जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और एम्बुलेंसों का भी मामला होता है, ये भी जो है रेगुलर यहाँ रहनी चाहिए। जिस हिसाब से जो लोग बीमार होते हैं बहुत दूर दराज से आना पड़ता है उन लोगों को, तो जिसकी वजह से जो है इंतजाम से यही हम गुजारिश करते हैं कि इस जगह का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, ताकि 2-3 महीने बहुत मुश्किलातें होती। गुरेज के चौरवन नामी इलाके में सड़क पर बर्फानी तोदा गिरा है, जिसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने इस बर्फानी तोदे को हटाने के लिए मशीनरी काम पर लगा दी है। ये बर्फानी तोदा बस्ती से दूर सड़क पर आ गिरा। इस वजह से इस बर्फानी तोदे से किसी भी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पूरे गुरेज खित्ते में भारी बर्फबारी हुई, जिसके पेश नज़र इंतजामिया ने लोगों को चलने फिरने में एहतियात बरतने की अपील की है। बानिहाल के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सुबह से मुतला अबर आलूद रहा और धूप, छांव और हल्की बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। जवाहर टनल के आर पार ताज़ा बर्फबारी हुई। जवाहर टनल पर तैनात बीकन के एक अफसर ने न्यूज़ 18 को बताया कि बीकन मशीनरी की तरफ से सड़क से बर्फ को साफ किया गया है और सड़क पर खाद और नमक का छिड़काव किया गया ताकि सड़क पर फिसलन पैदा न हो। इस दौरान बारिशों के बावजूद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नक्ल हरकत मामूल के मुताबिक है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। डॉक्टर फारूक आज नौशहरा श्रीनगर में मारूफ शायर रहमान राही को की रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए गए और न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि रहमान राही को खोकर हमने बहुत कुछ खोया है। उन्होंने बेलौस तरीके से कश्मीरी ज़बान को बाख्तियार बनाया। मोहन भागवत के बयान पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अगर वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं तो हम नहीं डरेंगे। इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला साहब मौजूद है। आपसे पूछना चाहेंगे, आप आज खराज अकीदत पेश करने आए हैं यहाँ पर, रहमान राही के जो है फैमिली से भी मिले, आप यहाँ पर उनके दोस्त लोगों से भी मिले। क्या कुछ खोया है रहमान राही के जाने से? हमने बहुत कुछ खोया है। ये वो शख्सियत थी जिन्होंने कश्मीरी जबान के लिए सब कुछ लुटा दिया। वही हमारा तशख्खुस है और उस जबान के लिए इन्होंने हर जगह कोशिश की कि इस जबान को उठाया जाए, पढ़ाया जाए, कि हमारे बच्चे इसको बोल सकें, और जबान से ही इंसान पहचाना जाता है। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में डर की कोई बात नहीं है, वो यहाँ सेफ है। और उन्होंने लेकिन ये भी कहा है कि मगर उनको चाहिए कि वो बालादस्ती तर्क करे। क्या कहना चाहेंगे स्टेटमेंट को लेकर? देखिए, वो अपना बयान देते रहते हैं, कोई नई बात तो है नहीं।
मुसलमान जो है वो अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं है। इसे अगर वो डराने की कोशिश करेंगे तो हम डरने वाले में से नहीं है। और वो जो कहते हैं कि हमें होश से रहना चाहिए, हम तो पहले से ही होश से रह रहे हैं, कोई हम तो बेहोश नहीं है। होम मिनिस्टर अमित शाह जो है जम्मू एक रोजा दौरे पे आ रहे हैं। डांगरी में वो फैमिली से मिलेंगे जो राजौरी किलिंग्स में जिनकी फैमिली चली गई उनसे मिलेंगे। वो उसके साथ साथ वो सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे, सिक्योरिटी सिचुएशंस को रिव्यू करेंगे। मीटिंग होने वाली है उनकी। क्या लगता है आपको इस दौरे से? देखिए, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं और मुझे खुशी है कि उनका फर्ज है आए, इन लोगों को देखें, इन पे जो कयामत गुजरी है, क्योंकि बहुत गरीब हैं वो जो राजौरी के लोग हैं, बहुत गरीब हैं। उनके सिर्फ दिलजोई के लिए ना आए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दें कि उसको गरीबी से निकाल सकें और सिक्योरिटी को और भी मुनज़्ज़म करें जिससे कि ऐसे वाक़ात ना हो। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए हैं डीसीज को कि जो भी एनक्रोचमेंट्स है, स्टेट एनक्रोचमेंट्स है, उनको रिमूव किया जाए 100% 31 जनवरी तक। उसमें रोशनी भी आ रहा है, खाई चराई भी आ रही है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ होने वाला है? इससे क्या पता चल रहा है? देखिए, जो कुछ भी ये करेंगे, जब लोगों की हुकूमत आएगी वो खुद इस चीज़ को ठीक करेंगे। नेहरू युवा केंद्र कश्मीर की जानब से टीके कॉलेज लावेपुरा श्रीनगर में नेशनल यूथ डे मनाया गया। मुनक्किदा तकरीब में वादी भर से 300 से ज्यादा नौजवानों ने शिरकत की। तकरीब में माहिरीन ने स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश के मौके पर उनके नज़रियात, ख्यालात और नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए मुफीद मशवरे दिए गए। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह SDPO बारिमपुरा श्रीनगर शाहजहां ने किया। नुसरत रहमान प्रिंसिपल टीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन राही रियाज और दीगर शख्सियात भी मौजूद रहे। इस मौके पर SDPO ने भी स्वामी विवेकानंद और नौजवानों की अहमियत पर जोर दिया। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ सरगर्मियाँ, सकाफती प्रोग्राम, कराटे और ड्रामे मुख्तलिफ यूथ क्लबों और महिला मंडल्स के जरिए पेश किए गए। यूथ अच्छा होगा तो हमारी कंट्री भी एक डेवलप नेशन बनेगी। लेकिन अगर हमारा यूथ ही इन बुरे कामों की तरफ मुलविस हो जाएगा तो हमारी कंट्री का फ्यूचर भी डार्क हो सकता है। हमें अच्छे कामों की तरफ जाना चाहिए, हमें हर फील्ड में खुद को एक एक्सपर्ट बनाना चाहिए, हम हर फील्ड में अच्छा करना चाहिए, क्राइम से हट के, बुरे कामों से हट के, ड्रग एडिक्शन से हट के। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब अभी का यूथ जब अच्छे रास्ते पे चलेगा और उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाएगा। आज के नेशनल यूथ वीक के सिलसिले में नेहरू युवा केंद्र की जानिब से गवर्नमेंट वुमेंस डिग्री कॉलेज अनंतनाग में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब एक्साइज टैक्सेशन अफसर साउथ कश्मीर हामिद गनाई, नेहरू युवा केंद्र के डिप्टी सरबराह मोहम्मद खलील मीर, DDC अनंतनाग के रुकन निसार अहमद के अलावा दीगर मुताल्लिकीन भी मौजूद रहे। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद को खराज अक़ीदत पेश किया गया और कौम के तईं उनके खिदमात को याद किया गया। जबकि मौजूदा सूरत हाल में नौजवानों को दरपेश मसाइल और मुनशियात में नौजवानों की बढ़ती लत पर भी तबादला ख्याल हुआ। स्वामी विवेकानंद जी सुन यूथ डे इंडिया लेवल ऑल इंडिया लेवल पे मनाने यूता जन एक्साइज डिपार्टमेंट सवाल चूँकि सैनिस यूथ सन खतर मैसेज चूँकि तुझे पता कि एज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एक्साइज डिपार्टमेंट फोर फ्रंटस पे वनकन फील्डस मज कर चूँकि मुख्तलिफ पहलुओं पे चलान यथ मज जन इलीगल कल्टिवेशन सह डिस्ट्रॉय करने। हमारा जो यहाँ नवदल त्राल के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। इनका कहना है कि फ्रूट मंडी के लिए जमीन की निशानदेही करने के बावजूद काम शुरू नहीं किया गया। लोगों के मुताबिक हुक्काम ने जमीन हासिल करने के बाद तमाम पेड़ काट लिए लेकिन मंडी की तामीर का काम शुरू नहीं किया। लोगों ने आला हुक्काम से त्राल में फ्रूट मंडी की तामीर का काम जल्द शुरू करने की अपील की है। फ्री ऑफ कास्ट जमीन देने के बावजूद भी, टेंडर निकालने के बाद भी बदकिस्मती है कि आज तक काम नहीं हुआ है। एक साल पहले DC साहब ने एक लेटर लिखा था हार्टिकल्चर एंड प्लानिंग को कि हमें एक इंटेंट भेजे कि ये ज़मीन आपके नाम करनी है। मुफ्त में ज़मीन हम दे रहे हैं, जितना भी था जो भी था हमने खाली कर दिया। एक रैना साहब के एक इतने पैक की नहीं जी यहाँ मंडी लगेगी तो, लेकिन बदकिस्मती आज तक नहीं हो रहा है कोई काम। अभी आपकी क्या डिमांड रहेगी? बस अगर इतना एरिया 175 गांव को आप कैसे नेगलेक्ट कर सकते हो? क्यों नहीं आप हमारी मांगे, ये जो मंडी की है, जो जेन्युइन डिमांड है त्राल की, क्यों नहीं देंगे भैया? हमारी सिंपल सी है, एक साइलेंट प्रोटेस्ट है। हम हर एक जो भी डिपार्टमेंट
जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में एक बार फिर न्यूज़ 18 का डंका बजा है। लोगों ने एक बार फिर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल पर अपना भरोसा जताया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल एक मरतबा फिर सबको पछाड़कर नंबर 1 चैनल बन गया है। इससे साबित होता है कि नाजरीन का हम पर भरोसा है और इस एतमाद के लिए आपका शुक्रिया। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।